بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. جس طرح سے ان کو اپنے کمرے اپنے سیل سے 8x10 کا جو سیل ہے کہ 6x10 کا سیل ہے اس سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی. ان ساری چیزوں کا بنیادی مقصد تھا کہ خان صاحب کو توڑنا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیت دی ہے, ایک ایسا ایمان دیا ہے, ایک ایسا عزم دیا ہے کہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے. وہ اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے, وہ اس ملک کے عوام کے لیے, ورنہ اس کے لیے بڑا آسان تھا اس سختیوں سے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خان صاحب سے کوئی پاکستانی ان سے زیادہ اچھی زندگی کسی نے نہیں گزاری. لیکن آخر میں انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ, عوام کے لیے, بجائے اس کے کہ نواز شریف یا باقیوں کی طرح معاہدے کر کے اور باہر چلا جائے, اس نے اپنے قوم کے لیے یہ قربانی دے رہا ہے. ان کے ساتھ ان کی فیملی کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا, ان کی بیگم کو 9 مہینے جیل میں رکھا گیا. اور ابھی جبکہ پہلی دفعہ کورٹس نے بھی ہمیں اجازت دی ہوئی ہے اور یہ بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے خان صاحب سے جو ان کی سیاسی وہ ہے گفتگو ہے اس پہ بالکل قدغن لگائی ہوئی ہے. آج ہماری میٹنگ تقریباً 6 ہفتوں کے بعد ہم نے کرنی تھی. جیل حکام نے اجازت بھی دی, لیکن ہم 2 بجے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 2 بجے سے ہمارے جتنے 6 لوگ تھے, جس میں کہ سیکرٹری جنرل اپنا عمر ایوب خان, لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی, جس میں زرتاج گل ہماری پارلیمانی لیڈر, ہمارے اسپیکر اور ابھی MNA اسد کیسر صاحب, جمال صاحب, اور ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب, میرے سمیت ہم سب ایک سیاسی پارٹی کے ایک نمائندے ہیں, چاہے وہ پارلیمان ہو یا وہ اپر ہاؤس ہو یا لوور ہاؤس ہو. اور خان صاحب سے جو اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں ان کے ساتھ بات نہ کرنے دینا, تو ہمیں کہا گیا کہ آپ ہم سے, انہوں نے ہمیں ویڈیو آگے لگا دیا کہ جی آپ لکھ کے دیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ ان کے ساتھ موسم کا حال ڈسکس کرنا ہے یا کرکٹ کا میچ کوئی ڈسکس کرنا ہے. ہم تو آئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے, کیونکہ وہ ہماری پارٹی جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اس ملک کی سب سے پاپولر جماعت, اور عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اور یہ وہ شخص ہے جس کو کے اندر مقید کیا گیا ہے, جس کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل ہے, مسائل کی کنجی ہے. یہ جو سیاسی عدم استحکام کریٹ کیا ہوا ہے اس کو اگر کوئی بحال کر سکتا ہے وہ یہ عمران خان ہے, جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہے. تو ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے, تو آپ اپنا انڈرٹیکنگ دیں کہ آپ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. ایسی صورتحال میں پہلے آپ کو 3 گھنٹے ہمیں روکے رکھا, انتظار کروایا, اور پھر یہ ہم سے یہ بیان لینے کی کوشش کی گئی, جو کہ ہم نے نہیں دیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم ایسی بات کیوں کریں جو کہ ہم کریں گے نہیں, اور کل وہ ہمارے ہی خلاف ان کو استعمال کریں گے. مقصد یہی تھا. تو ہم اس کی مذمت, شدید مذمت کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حربوں سے, اس طرح کے طور طریقے سے ملک میں نہ سیاسی استحکام آئے گا, اور نہ جو عوام میں ایک اضطراب ہے, جو ایک ٹینشن ہے, وہ ختم ہوگی. میں اب ریکویسٹ کروں گا اپنے عمر ایوب خان صاحب سے کہ وہ بات کریں. آپ بیچ میں آ جائیں, بیچ میں آ جائیں, آپ بیچ میں شروع کریں جی, ادھر ہی لگے رہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے خواتین و حضرات, اس وقت ہم لوگ بالکل اڈیالہ جیل کے ساتھ کھڑے ہیں. میں باتیں ریپیٹ نہیں کروں گا, میرے بڑے بھائی اور لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں شبلی فراز صاحب نے تفصیلاً بات کر دی ہے. جیل حکام نے اور جیل ملازموں نے بات کی کہ جی انڈرٹیکنگ چاہیے کہ ہم لوگ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد 3 گھنٹے کے انتظار کے بعد میری بہن زرتاج بیوی جو ہیں, یہ DG خان سے 7 گھنٹے کا سفر طے کر کے آئی ہیں. میں خود فیصل آباد ATC سے آیا ہوں, میاں والی سے ہمارے ساتھی آئے ہیں, لاہور سے آئے ہیں ساتھی.
यहाँ पे स्वाबी से आए हैं असद कैसर साहब। मुख्तसरन जेल हुकाम को, इस्टेब्लिशमेंट को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को और फॉर्म 47 फेडरल गवर्नमेंट और फॉर्म 47 सूबाई हुकूमत को मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि हमसे अडयाला जेल का या सुपरिटेंडेंट ये अंडरटेकिंग चाहता है तो बहैसियत सियासी कारकुन मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ उन सारे इदारों के हेड्स को कि वो भी अंडरटेकिंग स्टैम्प पेपर के लिख के दे दें कि वो सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। वो दे दें तो हम भी करते हैं। फिर ये क्या बात हुई? हम लोग सियासी वर्कर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट लाइन के वर्कर्स हैं। हमारा कायद है वजीर आजम इमरान खान साहब, हमारी जान हाजिर है इस मुल्क के लिए और अपने सियासी पार्टी के लिए और अपने कायद वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे मैं ये कहता चलूं कि 2 महीने के बाद हमारी सियासी मुलाकात यहाँ पे अपने लीडर से इन्होंने नहीं अलाउ की। गो के कोर्ट में यहाँ पे ऑर्डर्स हुए हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। यहाँ पे ये दुनिया को इस चीज से छुपाना चाह रहे हैं दुनिया से कि वजीर आजम इमरान खान साहब के सेल के अंदर बिजली बंद कर दी गई, उनको जो खाने का म्यार दिया जा रहा है वो सब स्टैंडर्ड है, उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी, उनको एक्सरसाइज नहीं करनी दी जा रही, उनको सेल के अंदर बंद रखा जाता है, उनको पानी नहीं दिया जाता, उनका पानी कट ऑफ किया जाता है। बुशरा बीबी के साथ जो हालात और वाकयात हुए, उनके खाने में हार्पिक मिलाया गया, पॉइजनिंग की गई। जिस तरह के हालात में बुशरा बीबी ने भी टाइम गुजारा, हम लोग वजीर आजम इमरान खान साहब बुशरा बीबी को खराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब की हमशीरा गान को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, यास्मीन राशिद साहिबा को, आपके मियां महमूद रशीद साहब को, चौधरी इजाज साहब को, उमर चीमा साहब को, हसन न्याजी को, हमारे 84 मिलिट्री कोर्ट्स में असीरान है उनको, इंतजार पंजोता साहब को, आजम स्वाति साहब को, इन सारों को, ये सब के सब सियासी कैदी हैं। हम लोग उनको सलूट पेश करते हैं। हमारा लाएअमल, हमारी सियासी टीम, चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब और हमारे सेक्रेटरी जनरल बैरिस्टर हमारे सलमान अकरम राजा साहब, वो अनाउंस करेंगे। आज हमारी बड़ी अहम मीटिंग होनी थी। मैं यहाँ पे आपके तवज्जुह से, मीडिया के मेरे भाई और बहनें यहाँ पे हैं, कि जो मैं बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे उन लोगों को जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ, पर आपके मीडिया के मालिकान की टांगे कांपती हैं जिस वक्त मैं नाम लेता हूँ। जिस वक्त मैं एजेंसीज का नाम लेता हूँ, आपके मीडिया मालिकान जो है वो बंद कर देते हैं, टांगे कांपती हैं। टांगों में सांस डालें, खड़े हो जाएं इस मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए। सिर्फ अपने कारोबार को ना देखें, मुल्क के लिए आप खड़े और आवाज उठाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी आप जरताजगुल साहब, आप लास्ट पे असद कैसर साहब जो हैं वो फाइनल आपसे बात करेंगे। जी एक मिनट बस हो गया बस आप पकड़ लें, चलें। हाथ में पकड़ लें, नीचे रख लें। पहले तो मैं सबसे पहले आप मीडिया का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। आप पूरा दिन यहाँ पे गर्मी में सर्दी में हमारे लिए खड़े रहते हैं ताकि आपके तवज्जुह से कोई बात मेरे लीडर इमरान खान की आवाम तक पहुँच सके। आपके सामने हम यहाँ पे खड़े हैं, तमाम लोग मुअज़्ज़ज़ अपने इलाकों से वोट लेकर आए हैं। हमारे पास सेनेट के अपोजिशन लीडर इस वक्त खड़े हैं, सेनेटर शिबली फराज साहब। असद कैसर साहब हमारे एक स्पीकर हैं, उनका अपना एक प्रोटोकॉल है। अपोजिशन लीडर हमारे साथ खड़े हैं इस वक्त उमर अयूब साहब, उनका अपना एक मकाम है। आमिर डोगर साहब मुल्तान में लोगों को हरा के आए हुए हैं। एहसन जमाल खान साहब इस वक्त खड़े हैं। मैं खुद डेरा गाजी खान से 7 घंटे का सफर इसलिए करके आई हूँ कि मेरे लीडर इमरान खान ने खुद हमारे नाम दिए थे और आज चूंकि कोर्ट ने पाबंदी हटा दी थी तो हमने अपने लीडर्स के साथ मिल के आपको और अपने अवाम को अपना लाएमहल देखना था, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। मैं सिर्फ आपको मीडिया के तवज्जुह से ये बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज लोगों को बताएं ये कितनी बेशरम हुकूमत है, ये कितनी सफाक हुकूमत है। इसकी ये जो हरकत है ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आज आपके पास कुर्सी है, कल को हमारे पास कुर्सी है। आप ये समझते हैं कि ये कुर्सी आपकी पूरी उम्र पायदार रहेगी और आप जो जुल्म और जबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करेंगे उसका हिसाब नहीं होगा।
हिसाब हर चीज का देगा, क्योंकि अल्लाह ताला की भी एक जात है। हमें अंदर से कहा गया, हम इतने घंटे वहां पे बैठे रहे और कहा गया कि आप लिख के दे कि आप अपने लीडर इमरान खान से सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। मैंने कहा हम ये तो साइन आपको करके दे सकते हैं कि हम 6 लोग अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करके गए हैं और डंके की चोट पे आए हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हम आपको कोई ऐसी चीज लिख के दें कि हम सियासी गुफ्तगू ना करें, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी गुफ्तगू करेंगे। हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है और इमरान खान के साथ है। मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ और असद कैसर साहब को माइक देना चाहती हूँ। मेरी मीडिया के तवज्जो से और इंसानी हकूक की तंजीमों से मेरी अपील है, हमारे साथ कमीशन बनाएं और इस अडियाला जेल का दौरा करें, मेरे लीडर इमरान खान के सेल का दौरा करें। कौन सी चीज अवाम से और हमसे छुपाई जा रही है, क्यों हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, कौन सी उनको अजियत दी जा रही है कि जिसकी वजह से वो समझते हैं कि इमरान खान का चेहरा या इमरान खान का जो पैगाम है वो अवाम तक ना पहुंचे। अवाम जुड़े हुए हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान को बहरान में से सिर्फ एक ही लीडर निकाल सकता है और उसका नाम है इमरान खान। तो आप जुल्म कर लें, आप हमें ना मिलने दें, ये बात आप याद रखिएगा कि कौम जुड़े हुए, जो मेरे लीडर की कॉल आएगी हम उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे। सबसे ताकतवर हमारी पार्टी और मेरे लीडर इमरान खान, आपकी जुर्रत को सलाम करती हूँ। हमने तो 3 घंटे में मेरा सब्र खत्म हो गया। मुझे तो मैं अपोजिशन लीडर उमर अयूब भाई बार लेकर आए, वरना मैंने कहा मैं तो 7 घंटे सफर करके आई हूँ, 7 घंटे यहाँ पे धरना देती हूँ कि मुझे अपने लीडर इमरान खान से मिलने दिया जाए। हमारा सब्र खत्म हो गया। लेकिन मेरे लीडर, आप कितने बहादुर हैं, आप कितने जिद्दार हैं कि आप नवाज शरीफ की तरह 150 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर प्लेटलेट्स गिरा के मुल्क से नहीं भागे, आप इनके जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, दोबारा से मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और टिक टॉकर वजीर आला, तुम सुन लो और जरदारी तुम भी सुन लो। तुम्हारे वक्त भी गिना जा चुका है, तुम्हारी कुर्सी भी मुस्तकिल नहीं रहनी। तुम आइन के ऊपर शब खून मार लो, माँ बहनों बेटियों का अगवा कर लो, हमें अपने लीडर से ना मिलने दो। लेकिन याद रखना, एक वक्त हमारा भी आएगा और मेरा लीडर दोबारा इंशाल्लाह अवाम की ताकत से वजीर आजम बनेगा। मैं असद कैसर साहब को देती हूँ। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें तो हो गई हमारे अपोजिशन लीडर सेनेट और कौमी असम्बली की, और जो हमारे पार्लियामानी लीडर्स ने बात की है। मैं सिर्फ आज इस मौके पे इतना कहूँगा कि ये जो फाशिस्ट हुकूमत है जो वफाक में है और जो सूबे में, उसका आप चेहरा देख लें, असली चेहरा है। ये जमहूरियत का राह लाते हैं, ये अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं। यानी मैं एक असम्बली का मेंबर हूँ, यहाँ जो है ना अपोजिशन लीडर्स हैं, चीफ विप हैं, हमारे जो पार्लियामेंट जमाल एहसन साहब हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं। हमने खान साहब के साथ क्या बात करनी है, हमने उसके साथ जो है ना पॉलिटिकल डिस्कशन करनी है। हमें पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी में ये हमारा मैंडेट है, आइन हमें ये हक देता है, कानून हमें हक देता है। मरियम बीबी, तुम जिस तरह एक फाशिस्ट खातून के तौर पर जो है ना यहाँ इस सूबे में हुकूमत कर रहे हो कि आप अपनी सूबे में हमारे वर्कर की किसी तरह उनकी चादर और चादीवारी की जो पामानी हो रही है, जो ख्वातीन की बेहुरमती हो रही है, जो बच्चों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, जो हमें अपने जमहूरी हक से महरूम रखा जा रहा है, और जिस तरह आप कानून साजी कर रहे हैं और कानून साजी के लिए बड़े बड़े पैसे, बड़े बड़े रिश्वत, जुल्म और जबर, याद रखें ये अगर आपकी गलतफहमी है कि आप इस किस्म के हथकंडों से हमें डिस्करेज करेंगे, इस किस्म के हथकंडों से हम दबाव में आएंगे, यह आपकी गलतफहमी है। हम ये जो लोग खड़े हैं, हम पुरअमन जरूर है, हम एक कानूनी जंग लड़ेंगे, लेकिन अगर आपकी ये गलतफहमी है कि हम पीछे हटेंगे, हम मायूस होंगे, हम लड़ेंगे और इस तरह लड़ेंगे कि तुम्हें पता चल जाएगा। मैं जो ऑफिसर्स है उसको बताना चाहता हूँ, देखें कानून के अंदर अपनी ड्यूटी इस्तेमाल करो। जो कानून में आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर आप किसी सियासी हुकूमत के चमचे बनते हो और उनके कहने पे बात करता हूँ, तो मैं आपको यकीन दहानी करता हूँ कि तुम्हारा हिसाब किताब बराबर किया जाएगा इंशाल्लाह। ये टाइम जो है ना मुस्तकिल नहीं रहेगा, जो हुकूमत जो है ना इसका इतना लंबा टाइम नहीं होता, यूं चेंज हो जाते हैं। हिसाब किताब लेंगे जो तुमने गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इमरान खान के साथ जो सलूक हो रहा है ये काबिल मजम्मत है, कल कौमी असम्बली में भी उठाएंगे। और ये जो हमारा एहतजाजी तहरीक है, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ, हमारी पॉलिटिकल कमेटी ने भी डिसीजन दी है, हमारे जो ना खान साहब के साथ भी डिस्कशन है, हम फाइनल करेंगे, हम पूरे मुल्क में निकलेंगे
پورے ملک میں ابھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، 1-2 دن میں بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا. لیکن یاد رکھے آپ کی اس رویے سے ہمارے اندر اور بھی طاقت آتی ہے، اور بھی ہمت آتی ہے. بالکل. تمہاری شکلیں دیکھو، تم سمجھتے ہو کہ تم سے ہم ڈر جائیں گے، تمہاری غلط فہمی ہے. ہم انشاءاللہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے لڑیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بہت بڑا پولیٹیکل بیٹھک بھی کرنا چاہتے ہیں. ہم سندھ، بلوچستان، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں تاکہ اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو. تھینک یو. کون سا تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے. دیکھیں میں سلمان اکرم، یہ ہماری ساری لیڈرشپ ہے، جو ہم ساتھ کھڑے ہیں. لوگوں کی اوپینین ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، فیصلہ وہی ہوگا جو کلیکٹیو ڈیسیجن ہوگا. ہم نے کلیکٹیو ڈیسیجن کرنا ہے. ہم نے یہ بات یار یہ کوئی سوال نہیں ہے، سوال پوچھو نا، نیشنل لیول کا پوچھو نا. آپ اس طرح نہ کریں نا. دیکھو یہ کوئی سوال تو نہیں ہے. دو شخصیات کی کل کی بات ہے. چیئرمین اور آپ سیکرٹری جنرل آج کی بات یس سے لیتا ہوتا ہے. تھینک یو. عمر صاحب آپ پہلے بھی یہاں آتے رہے ہیں ملاقاتوں کے لیے، پہلے بھی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، اس کے بعد آپ دوبارہ عدالتوں میں گئے، پھر آپ کورٹ آرڈرز دیے، پھر آپ کو روکا جا رہا ہے. آپ اپوزیشن لیڈر ہے، آپ اس مسئلے کو اسمبلی کے ہم لوگ ہر جگہ پہ اٹھاتے ہیں. اور میری آپ کے مالکان کو، میڈیا مالکان کو بھی میری ایک گزارش ہوگی، ذرا ٹانگوں میں سانس ڈالیں. کام پہ ان کی نہیں ٹانگنی چاہیے اور وہ ذرا سانس ڈالیں اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے اور اس چیز کو اٹھائیں، کیونکہ آج یا ہم لوگوں پہ یہ چیز ہو رہی ہے، کل ان پہ بھی ہوگی. تھینک یو. ان کے ایک منٹ میں صرف اتنا کہوں کہ اس کے خلاف ہم کل کو بھی اسمبلی میں اٹھائیں گے اور اس کے خلاف جو ہے سینٹ میں بھی اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے خلاف عدالت بھی جائیں گے.